नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीयर 3 की, तो ये बुक बहुत बेस्ट है। सारे जनरल टॉपिक है इसमें, एस्से लेटर हैं, प्रेसिज हैं और पूरी तरीके से अपडेटेड है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इसका। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट 1000+ स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं इस बार। अगर आप भी चाहते हैं, अगर एग्जाम में भले ही टॉपिक ना आए लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हाउ टू राइट अ प्रेसी, हाउ टू राइट अ लेटर, किस तरीके का फॉर्मेट रहता है। अगर आप फॉर्मल लिखते हो, इनफॉर्मल लिखते हो, लेटर टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कैसे लिखते हो, लेटर टू योर फ्रेंड, लेटर टू योर पेरेंट, लेटर टू योर प्रिंसिपल एंड लेटर टू द एडिटर, तो ये सारी चीज़ पता लग जाएंगी। लेटर टू द डीएम, एसडीएम, किस तरीके से आपको लिखना होता है, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एस ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल आज का हमारा टॉपिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देख लीजिए। Today, when the world is thriving to use day by day new technology everywhere, electric vehicle must be the future means of transport. Pollution Future means of transport. Pollution, growing demand for fuel, global warming, promoting eco-friendly means of transport are some of the reasons for promoting electric vehicle. ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। आगे देखिए, मतलब किस किस वजह जरूरत क्या पड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आने की। पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, पोल्यूशन हो गया, ग्रोइंग डिमांड फॉर फ्यूल, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्रमोटिंग इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ रीज़न है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज ड्रिवन बाय the global climate agenda established under the Paris Agreement to reduce carbon emission in order to limit global warming. Electric vehicles are means of transport that consume electric energy as fuel instead of traditional fuels such as petrol, diesel and CNG. These vehicles may be powered through a collector system by electricity from off-vehicle sources or may be inbuilt with a battery, solar panels, fuel cells or an electric generator to convert fuel to electricity. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक बेसिकली ठीक है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से ये नहीं चलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो फिर चलेंगे कैसे? तो बेसिकली ये पावर होते हैं एक कलेक्टर सिस्टम के द्वारा जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है फ्रॉम ऑफ व्हीकल सोर्सेस और मे बी इन बिल्ट, इसके अंदर ही एक बैटरी लगा दी जाएगी, सोलर पैनल लगा दी जाएंगी या फिर फ्यूल सेल लगा दिए जाएंगे जो बेसिकली फ्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी। आपकी इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली। इलेक्ट्रिक बाइक्स, electric cars, electric rickshaw, etc. are some example of the electric vehicles. Most of the trains, including metros, are already running worldwide through electricity. तो ये इलेक्ट्रिसिटी से ऑलरेडी चल ही रही है। मेट्रो तो आप देखते ही हो कि वो सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। The world population is increasing drastically day by day and the demand of means of transport also growing proportionally. Thus, demand of fuel is also increasing. Too much smoke comes out from traditional vehicles. This causes air pollution, which take many lives every year. Electric vehicles are new technology. This sector will grow day by day, which generate a lot of employment in this field. Electric vehicle will reduce the dependency of nation on petroleum export countries. This will reduce the import cost of petrol, diesel like fuels, and thus it will help in growing the economy of the country. Cost of electric vehicle is also low if we compare the recurring expenditure on petrol and diesel. Recurring मतलब एक तरीके से बढ़ ही रही है बस, and diesel used in traditional means of sport. तो cost व्हीकल की कम आएगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। As electric vehicle is cheaper, next देखिए, as electric vehicle is cheaper in long run and also environment friendly, the government is continuously promoting the use of electric vehicle. Recently, Delhi government has launched Switch Delhi campaign, a Jan Andolan to promote the use of electric vehicles. This initiative has been taken by the Delhi government to cut down air pollution costs due to the smoke emitted by traditional petrol and diesel vehicles. Earlier in August 2020, Delhi government introduced Delhi EV policy. Under this policy, Delhi government provides Delhi government provides waiver on road tax benefits up to rupees 1.5 lakh on four-wheelers or more. We must use electric vehicles keeping in mind the above points, including the environment, and also promote the use of electric vehicle. फटाफट से हिंदी में भी बता देता हूँ मैं इसी वीडियो में। आज
जब दुनिया हर जगह दिन प्रतिदिन नई तकनीक का प्रयोग करने के लिए संपन्न हो रही है, इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन के भविष्य का साधन होना चाहिए। पर प्रदूषण, ईंधन की बढ़ती डिमांड, ग्लोबल वार्मिंग, परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल साधनों को बढ़ावा देना इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के कुछ कारण हैं। उसके बाद देखिएगा, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कार्बन उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते के तहत स्थापित वैश्विक जलवायु एजेंडा द्वारा संचालित है। इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो परिवहन के साधन है जो पारंपरिक ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बजाय ईंधन के रूप में उदार ऊर्जा का जो उपभोग है वो करते हैं। इन वाहनों को कलेक्टर सिस्टम के माध्यम से ऑफ व्हीकल स्रोतों से बिजली द्वारा संचालित किया जा सकता है। यह शायद बैटरी, सोलर पैनल, ईंधन सेल या एक इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ ईंधन को बिजली में बदलने के लिए इनबिल्ट किया जा सकता है। तो आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक रिक्शा आदि इलेक्ट्रिक वाहनों इसके वाहनों के कुछ उदाहरण हैं। दुनिया भर में मेट्रो समेत ज़्यादातर ट्रेनें पहले से ही बिजली के जरिए जो हो चल रही है। विश्व की जनसंख्या में दिन प्रतिदिन अत्यधिक वृद्धि हो रही है और परिवहन के साधनों की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। ऐसे में ईंधन की मांग भी बढ़ रही है। पारंपरिक वाहनों से बहुत अधिक धुआं निकलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है और हर साल कई लोगों की जान ले लेता है। इलेक्ट्रिक वाहन नई तकनीक है, यह क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ेगा जिससे इस क्षेत्र में काफी रोजगार पैदा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है पोल्यूशन की होगी। और ये वाला हो गया कि इसको कैसे जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, ये हो गया। इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों पर एक राष्ट्र की निर्भरता को कम करेगा। तो ये भी काफी अच्छी जो है लाइन है। जैसे हम बाहर से जो है वो इसको इंपोर्ट करते हैं और जो तेल वगैरह है, फिर उसकी रिफाइनिंग हमारे इंडिया में होती है। उसके बाद आगे देखिएगा, इससे पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन की आयात लागत जो है वो कम हो गई और इस प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगा। ऑफ कोर्स काफी अच्छी बात है ये। अगर हम परिवहन के पारंपरिक साधनों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर होने वाले आवर्ती खर्च की तुलना करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत भी काफी कम है। चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन लंबे समय से में सस्ते होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं, इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को लगातार बढ़ावा दे रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान एक जन आंदोलन शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने पारंपरिक पेट्रोल और डीजलों वाहन से निकलने वाले धुओं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह पहल की है। इससे पहले अगस्त 2020 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी पॉलिसी पेश की थी। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ईवी इलेक्ट्रिक पॉलिसी, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पेश की थी। इस नीति के तहत दिल्ली सरकार रोड टैक्स पर छूट, दुपहिया वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक का लाभ और अधिक प्रदान करती है। ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड कर रही थी? रोड टैक्स पर छूट, ठीक है, जो आरसी होती है हमारी बेसिकली, चौपहिया वाहनों 4 व्हीलर्स पर 1.5 लाख रुपए तक का लाभ और अधिक प्रदान करती है। हमारे पर्यावरण सहित उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं, ठीक है, उनको रखना चाहिए और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए। होप ये पैसेज आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।